بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، نحو والو اما کلاس والے نحو والے ہم آج اجرا کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جو چیز ڈھونڈیں گے وہ کلمے کی جو قسمیں ہیں نا، اسم، فعل اور حرف، ہم یہ ڈھونڈیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم ڈھونڈیں گے مرکب، مفید اور اس کی اقسام۔ اگر نہیں ہے تو پھر مرکب، غیر مفید اور اس کی اقسام، یہ آپ نے پڑھی، جب تک آپ نے یہ پڑھی۔ اور پھر اسم معرب، اگر اسم ہے تو اسم معرب کی جو اقسام ہیں وہ ہم ڈھونڈیں گے، ٹھیک ہے۔ اور مبنی بھی ہم دیکھیں گے، اوور آل مبنی دیکھیں گے ہم۔ چلیں جملہ بولیں جی، پہلا کیا جملہ ہے؟ فتحوا متاعهم، فتحوا متاعهم، لیکن انہوں نے کھولا اپنا سامان۔ اب اسم فعل حرف جب آپ نے ڈھونڈنا ہے تو دیکھیں، سب سے پہلے اس میں ہم نے دیکھنی ہے علامات اسم۔ تو علامات اسم جو عموماً ہیں الف لام، حرف جر، تنوین اور وغیرہ وغیرہ، جو بھی یاد ہے نا آپ کو۔ ہاں جی، علامات اسم اس میں نہیں ہے، علامات اسم اس میں نہیں ہے، لہذا یہ اسم نہیں ہے۔ اب ہم علامات فعل دیکھیں گے تو علامات فعل میں آپ نے پڑھا ہوا ہے قد ہو، شروع میں سین ہو، سوف ہو، حرف جزم ہو، اور اس میں یہ بھی پڑھا ہوا ہے کہ ضمیر متصل ہو۔ کیا پڑھا ہوا ہے؟ ضمیر متصل ہو۔ یہ ماضی کا ہے، ماضی کا صیغہ۔ تو ضمیر آپ کو میں نے بتایا تھا ضربہ میں، ضربہ اور ضربت کے علاوہ باقی جتنے بھی صیغے سب میں ضمیر متصل ہیں۔ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو نا، آپ دونوں کا اور آپ کا، آپ نے مجھے پوچھنا ہے، پریشان نہیں ہونا، اور ادھر ذرا دیکھنا دھیان سے، مجھے بار بار یہ نہ کہنا پڑے اوے ادھر دیکھیں اور ادھر دیکھیں ذرا۔ تو اس میں ضمیر متصل ہے تو یہ فعل ہے۔ یہ کیا ہے؟ فعل ہے، یہ فعل ہے۔ اب یہ واو ہے، واو یہ ضمیر ہے، اور ضمیریں ساری کی ساری آپ نے کیا پڑھ گئی ہیں؟ اسم ہے، تو لہٰذا یہ اسم ہے، یہ اسم، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں بھائی یہ فعل ہے اور یہ اسم ہے۔ اور متاعہم، انہوں نے کھولا اپنا سامان۔ متاعہم، تو یہ اسم ہے، متاعہم یہ اسم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے پڑھا تھا جو مضاف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ کتاب زید، اپنا سامان، انہوں نے کھولا اپنا سامان۔ تو سامان کی اضافت کس کی طرف کی گئی ہے؟ اپنے کی طرف۔ تو لہٰذا یہ مضاف ہے تو یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، لہٰذا یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے۔ ادھر یہ تو ہم نے پہلا جو حصہ ہے وہ ہم نے کلیئر کر لی ہے۔ اس میں سے اسم فعل حرف ہم نے ڈھونڈ لی، اسم فعل حرف ہم نے ڈھونڈ لیے۔ یہ والا درمیان والا پورشن ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے ہم ادھر آ جاتے ہیں۔ ادھر اسم معرب کی جو اقسام ہیں، تو اسم معرب کی اقسام میں یہ اسم، بلکہ پہلے ہم یہ کلیئر کر لیتے ہیں نا کہ اسم مبنی میں سے کوئی ہے یا نہیں ہے، بلکہ اوور آل مبنی، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا تمام حروف مبنی ہوتے ہیں، اور پھر ماضی امر حاضر معروف مبنی ہے، اور پھر مضارع میں کچھ سیغے، 5 سیغے، 2 سیغے، 5 سیغوں میں نون تاکید آ جائے تو مبنی، اور 2 سیغے مبنی ہوتے ہیں، یاد ہے؟ اور باقی پھر مضارع معرب ہے۔ اور اسم کی جو اقسام ہے جو میں نے پڑھائی ہے وہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ جو اسم ہے، بلکہ سب کو دیکھیں، فعل بھی ہے، یہ فعل مبنی ہے یا نہیں ہے؟ مبنی ہے بھائی، یہ فعل مبنی ہے کیونکہ یہ ماضی ہے۔ یہ فعل کون سا ہے؟ ماضی ہے، اور ماضی ضربہ کی گردان بھی مبنی اور ضربہ کی گردان بھی مبنی، تو لہٰذا یہ مبنی ہے۔ اور اسم میں یہ اسم ہے، یہ اسم ہے اور یہ اسم ہے، یہ اسم ضمیر ہے اور یہ اسم ضمیر ہے۔ اسم مبنی کی کتنی قسمیں پڑھی تھی آپ نے؟ 8۔ اسم مبنی کی اوور آل میں نے آپ کو یاد کرائی تھی، مضمرات، اسماء موصولات، اسماء اشارات وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے جو ضمیریں وہ ساری مبنی ہوتی ہیں، یہ بھی مبنی اور یہ بھی مبنی، یہ بھی مبنی اور یہ بھی مبنی۔ اب ایک قسم رہ گئی یہ والا، یہ معرب ہے، یہ کیا ہے؟ معرب ہے۔ اور دیکھیں یہ معرب ہے، اور معرب کی یہ اصل میں یوں لفظ ہے، یہ اصل میں یوں لفظ ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کو چیزوں کا پتہ چلے گا، آہستہ آہستہ ہم جس سے بات کریں آرام سے کر لیں۔ اب یہ دیکھیں، متاع سامان کو بولتے ہیں، آنے والوں کو نہ دیکھا کرو خدا کے لیے، وہ اپنے کام ہے۔ آپ ادھر دیکھو، متاع یہ مفرد ہے، اور بھائی مفرد ہے،
समान, क्योंकि इसकी जमा अमतियातुन आती है, इसकी जमा क्या आती है, ऐसा ऐसा आपको पता चलेगा। ये मुफरद है और मुनसरिफ भी है, और क्या है, मुनसरिफ भी है। और नाहवियों के मुताबिक ये सही है कि नहीं है, नाहवियों के मुताबिक, क्योंकि इसके आखिर हरफ इल्लत नहीं है, इसके आखिर में वाव या नहीं, लिहाजा ये सही है। ये क्या है, सही है। तो इसम मोरब की जो कौन सी किस्म है, पहली किस्म है मुफरद मुनसरिफ सही। और अमूमन आप यूँ कह रहे हैं, जब आप ढूंढेंगे ना तो मेरा ख्याल है 70-80-90% आपको इस तरह के लफ्ज़ मिलेंगे जो मुफरद मुनसरिफ सही होते हैं। तो ये मुफरद मुनसरिफ सही है। और इसका इराब क्या है, रफ़ा, रफ़ा रफ़ा ज़म्मा के साथ, नसब फतह के साथ, जार कसरा के साथ। आप पहली क्लास के तालिब इल्म हो, परेशान नहीं होना, ये चीज़ें बार बार जब आप ढूंढेंगे आपको आ जाएंगी। इसका इराब क्या, रफ़ा ज़म्मा के साथ, नसब फतह के साथ और जार कसरा के साथ। बार बार रिपीट करें, बार बार रिपीट करें, रफ़ा ज़म्मा के साथ, नसब फतह के साथ, जार कसरा के साथ। तो इसको क्या पढ़ेंगे, मताउन, मताअन, मताइन, मताअन, मताउन, मताअन, मताइन। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे देख रहे हैं अब मुज़ाफ हो रहा है ना, मुज़ाफ हो रहा है, इसलिए तनवीन नहीं आई, अदरवाइज मताअन आना था। तो मुज़ाफ की वजह से मताआ आया है, मताआ आया है। अब हम इसकी ये वाला भी हमने हल कर लिया भाई, ये वाला भी हल कर। अब इसमें मुरक्कब मुफीद और गैर मुफीद में आ जाते हैं। अगर कोई मुरक्कब है वो मुफीद में होगा तो इसमें से होगा, जो इसमें से होगा वो इसमें से नहीं है। तो ये मुरक्कब मुफीद है, मुरक्कब मुफीद है ना, क्यों, क्योंकि मुरक्कब मुफीद की दो किस्में, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। ये जुमला खबरिया है और जुमला फेलिया है, जुमला खबरिया और जुमला फेलिया है। और इसकी तरकीब आपको मैंने कैसे करवाई थी, फातहा मतलब जुमला फेलिया की तरकीब। ये फेल है, वाव इसका क्या है, ये फाइल है, मता क्या है, ये मुदाफ है, और हिम क्या है, ये मुदाफ इलैह है। ठीक है, मुदाफ मिलके मफूल बिही है, और फिर अपने फाइल और मफूल बिही से मिलके जुमला फेलिया खबरिया। शाबाश। ले इतना सा काम है। जब एक काम आप बार बार करेंगे, बार बार करेंगे तो क्या कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन अ मैन परफेक्ट। आप फिर परफेक्ट हो जाएंगे। सही है, हाँ जी। और ये इब्तिदा में नहीं आता, जितना मैंने ये काम किया आपको बताता हूँ ना, मैं 2 क्लासें पढ़ ली तो मुझे इतना फिर भी नहीं आता, आगे चल के बाद में आया मुझे। अगर आप अभी से काम करेंगे तो आप बहुत सीख जाएंगे। अगली मिसाल जी, या अबाना। ठीक है, या अबाना, ए हमारे बाप, ए हमारे बाप। इसमें इसम फेल हरफ हमने ढूंढना है, इसम फेल हरफ। इसमें ये या अलग है और अबा अलग है और ना अलग है। ना हमारे ये ज़मीर के तौर पे, तो ज़मीरें सारी की सारी क्या होती हैं, मैं खुद करके दे रहा हूँ ताकि आपको करना आ जाए। आपने कैसे कैसे ढूंढना है। ज़मीरें सारी की सारी क्या होती हैं, इसम, लिहाजा ये इसम। या हरफ निदा आपने याद किए हुए, याद किए ना, या, अया, हया, आई, हमजा, आई, आ, हमजा। हमजा से मुराद है आ, या, अया, हया, आई, आ, यानी हमजा। ठीक, इसमें स्लाइड आप इसकी 1 मिनट, ये लोग शुरू हो गया। चले, अब या अबा नाम है, ये तो या हरफ है, हरफ निदा है, और ये जो ना है ये इसम है, ज़मीर है तो इसम है। अबाना, अबा हमारे बाप, तो निस्बत की है ना, इजाफत की है, इजाफत की है। तो जब हम इसकी इजाफत इसकी तरफ की है तो ये मुज़ाफ है, तो ये क्या हुआ, इसम हुआ। क्योंकि अलामात इसम में आपने क्या पढ़ा था, पढ़ा था ना, और आपने ये भी पढ़ा था अलामात इसम में हरफ निदा दाखिल हो, वो भी इसम पढ़ा था भाई, पढ़ा था। हरफ निदा दाखिल हो या मुनादा हो, तो इसके ऊपर एक तो ये मुज़ाफ हो रहा है, ये भी अलामत है, ये मुज़ाफ है, और दूसरा इसके ऊपर हरफ निदा दाखिल है, यहाँ पे 2 अलामतें, लिहाजा ये भी इसम, ये भी इसम, ये भी इसम, और ये हरफ। अब हम नीचे आ जाते हैं, मबनी ढूंढते हैं, फिर मोरब के इकसाम ढूंढेंगे। मबनी हरफ तो सारे के सारे मबनी होते हैं,
हरफ सारे के सारे ये या मबनी। मबनी का मतलब इसका इराब चेंज होगा, ये या रहेगा। आप जितना मर्जी धक्का लगा लो, आप थोड़ा लेके आ जाओ, उसको कूटो, जो मर्जी सीधा करने की कोशिश करो, ये बिल्कुल नहीं मानेगा, बिल्कुल ये बोलेगा मैंने या ही रहना है। ठीक है, अब इन दोनों में आपने फाइनल करना है कि कौन कौन सा मबनी है। ये जो ना है ये मबनी है कि नहीं है? ये मबनी है, ज़मीर है, ज़मीरें सारी की सारी मबनी है। और ये वाला जो इसम है, ये वाला इसम, ये मबनी नहीं है, ये क्या है? मोरब है। और ये वो किस्म है जो भी आपको मैंने पढ़ानी है। आज मैंने पढ़ानी थी, कुछ किस्में रह गई थी, मैंने इसको डिले किया, मैंने तो थोड़ी प्रैक्टिस करवा दूँ इनको, कुछ चीज़ें कंसेप्ट भी क्लियर हो। ये नहीं कि सबक तो याद किया हुआ है लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए इसको मैं छोड़ देता हूँ। इसम मोरब की कौन सी किस्म में छोड़ता हूँ, ठीक है। बस आप इतना याद करो कि ये जो अबा है ना, अबुन का लफ्ज़ है, ये अस्माए सित्ता में से है। अबुन, अखुन, हमुन, हनुन, फमुन, जो मालें, ये अस्माए सित्ता 6 हैं। इनका इस्तेमाल क्या, इनका इराब क्या, ये मैं आपको बाद में समझा दूँ। अब हम चलते हैं इधर मुरक्कब मुफीद या गैर मुफीद है। तो भाई ये मुरक्कब मुफीद है, मुरक्कब मुफीद है क्यों? आप में से कोई मुझे बता सकता है? हाँ जी, जुमला निशाइया में निदा है, जुमला निशाइया में क्या है? निदा, मुनादा है, तो ये मुरक्कब मुफीद है। अब जुमला निशाइया की जो तरकीब आपको मैंने करवाई थी, याद है? इसकी तरकीब में दोबारा कर देता हूँ, उसके मुताबिक या ज़ैदू के मुताबिक। ये जो या है, ये कायम मकाम किसके है? अदउरू की जगह पे आ गया है। अदउरू, अदउरू मैं बुलाता हूँ, ये फेल है, और इसमें अना, हाँ ये क्या है? ये फाइल है। और अबाना, ये मुज़ाफ मुज़ाफ मिलके, अबा मुज़ाफ ना मुज़ाफ 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 मिलके ये क्या बनेगा? मफ़ऊल बिही। शाबाश। फिर अपने फाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया। खबरिया नहीं कहना आपने, खबरिया नहीं कहना। लो जी, पोस्टमार्टम हो गया इसका। करना आ रहा है आपको? पोस्टमार्टम करना आ रहा है? हाँ जी, पोस्टमार्टम का मतलब खोल के चेक करना है एक चीज़ को। अगर आप, कुछ लोग होते हैं वो ढीले ढीले बैठे रहते हैं, ठीक है, तो फिर वो भाई वो पीछे रह जाएंगे। अगर आप अलर्ट होकर बैठेंगे, पूछेंगे, नहीं समझ आएगी, और अगर आप चुप करके बैठेंगे ना, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यक़रऊन, ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये कभी भी नहीं पढ़ेंगे और मरते दम तक ये जाहिल रहेंगे। फहुम यजहलून, तो फिर इल्म नहीं आएगा, ठीक है। आगे जुमला कौन से वाला? हादिही बिज़ाअतुना है, हादिही बिज़ाअतुना। सूरह यूसुफ में से ये लिए, मेरा ख्याल है उधर से लिए थे ना, बिज़ाअतु लेन। अब इसम फेल रब, ये क्या है? इसम इशारा, इशारे के लिए लफ्ज़ है, इशारे के लिए, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? इसम होते हैं। लिहाजा ये इसम हमारा समान, इसकी इजाफत की है, लिहाजा ये भी इसम। ज़मीर है, लिहाजा ये भी इसम, सारे के सारे इसम। अब हम चेक करते हैं मबनी। तो भाई इसम, जब आपने मबनी की, इसम मबनी की अक़साम जो पढ़ी थी, इसम मबनी की अक़साम जब आपने पढ़ी थी, तो उसमें पढ़ा था 8 किस्म के अस्मा मबनी होते हैं। कौन कौन से? ज़मीरें, मौसूलात, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ैनी, याद किए, और इशारात मैंने लेके दिए थे भाई, तफसीर में दोबारा बतानी है, लेके मैंने दिए थे। और इशारे के लिए जो लफ्ज़ हैं, हादी, हादा, ज़ालिका वगैरह वगैरह, तो ये बहरहाल ये मबनी है, तो लिहाजा ठीक है जी। और ये ज़मीर है, ये वाली जो ज़मीर है, लिहाजा ये भी मबनी है, ठीक है जी। हम इसको भी कर देते हैं, ये क्या है? ये मबनी है। अब ये पीछे रह गया बिज़ाअतुना, ये इस मबनी में से नहीं है, तो मोरब है। और मोरब की कौन सी किस्म है? हाँ, ये हमारे समान है, बिज़ाअतुना। हाँ, ये कौन सी किस्म है? अगर आपको कहीं डाउट हो, फर्ज किया आपको पता नहीं चल रहा भी जो है ना ये क्या है, तो आपने इसको लुगत में ढूंढ रहे हैं। कहाँ में ढूंढना है? लुगत में। लुगत रखी है ना आपने? हाँ, ये लुगत रखी हुई है। तो ये वाला लफ्ज़ आपने मुझे कल लुगत में ढूंढ के बताना है कि इसम मोरब की कौन सी किस्म है, ठीक है। कुछ किस्में आपको मैंने नहीं पढ़ाई, कुछ मैंने पढ़ाई हुई हैं, ये आपने ढूंढना है, ठीक हो गया। अब ये देखेंगे मुरक्कब मुफीद है या गैर मुफीद है। हाँ जी, मुरक्कब मुफीद है या गैर मुफीद है? मुफीद है। क्यों? क्योंकि शुरू में ये पूरी बात समझ आ रही है, और ये शुरू में इसम है, लिहाजा ये जुमला इसमी है, जुमला खबरिया की किस्म जुमला इसमी है। और जुमला इसमी की तरकीब हम कैसे करते हैं? हादिही, ये बन जाएगा मुब्तदा, और बिज़ा ये बनेगा मज़ाफ,
اور ला ये बनेगा मुदाफ इलैह, मुदाफ मुदाफ मिलके खबर, मुदाफ खबर मिलके जुमला इस्मिया खबरिया लेंगे। इसका भी पोस्टमार्टम आपने कर दिया, सही है। और भाई ये काम औखा है कि सौखा है? बड़ा ही आसान। औखा किसी ने कौन कह रहा है? बड़ा आसान है, आप दिमाग से काम लें, ठीक है। अल्लाह ने इतने बड़े बड़े ट्रांसफार्म आपको दिए हुए, ये देखो इसके अंदर। हाँ, ज़ालिका कैलुन यसीर, ठीक है। ज़ालिका ठीक है। अब इसम ये इशारा है, लिहाजा ये इसम कैलुन, कैलुन तनवीन आ गई है, लिहाजा ये भी इसम, इधर भी तनवीन आ गई है, लिहाजा ये भी इसम, ये भी इसम, ठीक है। मबनी भी आ जाते हैं, इसम मबनी के आठ अक़साम में इशारा है, लिहाजा ये क्या है? ये मबनी। और ये जो दोनों ये मोरब है, ये दोनों क्या है? मोरब है। और जो इसम मोरब के अक़साम अगर आप ढूंढते हैं तो इसम मोरब में जमा मुज़क्कर सालिम तो ये नहीं है, क्योंकि इसमें ऊन और ईना नहीं आ रहा। जमा मुअन्नस सालिम तो नहीं है, आतुन भी इसमें नहीं आ रहा। और गैर मुनसरिफ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तनवीन आ रही है, गैर मुनसरिफ पे तनवीन नहीं आती। और जो है ना, जो आपको मैंने किस में पढ़ाई वो मैं देख रहा हूँ सिर्फ, बाकी आप कुछ कुछ छोड़ दें। अच्छा, एक मिनट, जमा मुकस्सर भी नहीं है, जारी मजदा से, मुफरद मुनसरिफ सही है, ये दोनों क्या है? और इसका इराब क्या आएगा? कैलुन, कैलन, कैलिन, हालते रफा में जमा, हालते नसब में फतह, हालते जार में कसरा, कैलुन, कैलन, कैलिन। ऐसे यसीरुन, यसीरन, यसीरिन। लो, इतना सा काम है, इतना सा काम है। अब मुरक्कब मफीद है, गैर मुफीद है? भाई ये मुरक्कब मफीद है, क्यों? क्योंकि पूरा जुमला है, पूरा जुमला है। और मुरक्कब मफीद की कौन सी किस्म है? जुमला खबरिया। और जुमला खबरिया में जुमला इस्मिया, क्योंकि शुरू में इसम आ गया, क्योंकि जुमला निशे के 10 अक़साम में से नहीं है। और भाई जुमला निशे के 10 अक़साम में से नहीं है। अमर नहीं है, नहीं है, इस्तिफ़हाम नहीं है, तमन्नी नहीं है, तरज्जी नहीं है, उकूद नहीं है, अरद नहीं है, कसम नहीं है, ताजुब नहीं है, निदा नहीं है। तो क्या है? जुमला खबरिया है। और जुमला खबरिया में इसमें और फिर ये दो है, तो लिहाजा ये जुमला इसमें है, क्योंकि शुरू में इसम आ गया। इसकी तरकीब हम क्या करेंगे? ज़ालिका मुब्तदा, और कैलुन यसीर, ये क्या बनेगा? कैलुन मौसूफ, शाबाश, और यसीरुन सिर्फ मौसूफ मिलके क्या बनेगा? खबर, मुदा खबर मिलके जुमला इस्मिया खबरिया। लो, जितना सा काम है। आगे जी, अगला कौन सा लफ्ज़ है? कालल्लाहु लेंगे, कालल्लाहु, कालल्लाहु, ठीक है। तो काला ये जो क्या है? अलामत इसम में से कोई नहीं है, लिहाजा अलामत फेल हम चेक करेंगे। अलामत फेल में ये फेल क्यों है? आप में से जो मुझे बताएगा उसको 10 रुपये वाला चॉकलेट कल में दूंगा। हाँ जी, मैंने लिखवाया था माजी। हाँ नहीं, कोई और 10 रुपये की चॉकलेट ऐसे जल्दी तो नहीं मैंने, वैसे 5 रुपये वाले ले लेना आप, चलें कोई मसला नहीं। आपने बस बता दिया, मतलब बंदा बना सकते हैं। अलामत फेल में आपने पढ़ा था मुस्नद, नहीं पढ़ा था? मुस्नद नहीं पढ़ा था? मुस्नद नहीं पढ़ा था? मादी कर लो, मादी कर लो यार, ये मादी है, ठीक है। ले, ये फेल है, ठीक है। ये क्या है? फेल है। अच्छा, अब जल्दी में टाइम नहीं, गर्मी ऊपर इतनी लग रही है। और लफ्ज़ अल्लाह ये क्या है? इसम, क्यों अलिफ लाम इसके ऊपर आ गया है। और ये अलम है, नाम भी है, अलम है, नाम भी है। इसमें कितनी अलामात हैं? 2, 5 कौन कह रहा है? 1 और 1 5, वाह वाह, गर्मी की वजह घूम गए। मबनी, तो फेलों में फेल माजी मबनी होता है, तो ये मबनी है, इसका इराब चेंज तो नहीं होगा। काला काला रहेगा, काला कालू तो नहीं बन सकता, काला को काली तो नहीं कह सकते, तो ठीक है, ये मबनी। और ये वाला ये मुरब है, क्योंकि इसे मबनी की जो 8 किस्में उनमें से नहीं है, इसे मबनी की 8 किस्मों में से नहीं है। अगर जो कुछ मैंने आपको पढ़ाई, कुछ आपको मैंने पढ़ानी है, बस आप मेरे पीछे बहुत दो के नहीं है, डाल सकते हैं। आप मुरक्कब मुफीद और गैर मुफीद में, तो मुरक्कब मुफीद है या गैर मुफीद है? मुरक्कब मुफीद है। जुमला शेख 10 किस्मों, सॉरी, मुरक्कब मुफीद है, जुमला शेख 10 किस्मों में से नहीं, लिहाजा ये जुमला खबरिया है। तो जुमला खबरिया में जुमला फेलिया, तो तरकीब हम कैसे करेंगे? फेल, लफ्ज़ अल्लाह, फाइल, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया
ہو کر یہ بنتا ہے کال. کیا بنتا ہے؟ اس کے بعد آگے جو بات آئے گی وہ ہوگا مقولہ. ترکیب میں آپ کیا بناؤ گے؟ مقولہ. پتہ کتنا یاد رکھیں. آگے ادخلوا ادخلوا تم داخل ہو جاؤ. اب اس میں بھائی امر ہے نا, علامات اسم میں سے کوئی بھی نہیں ہے. علامت فعل دیکھیں گے, علامت فعل میں امر میں نے کہا تھا امر فعل ہوتا ہے, تو لہٰذا یہ فعل ہے. اور اس کے ساتھ یہ جو ہے یہ والی یہ ضمیر ہے, لے کیا ہے؟ اسم ہے. اور مبنی جب ہم تلاش کریں تو فعلوں میں فعل امر مبنی ہوتا ہے. امر حاضر معروف مبنی ہے, لہذا یہ بھی مبنی ہے. اور یہ ضمیر ہے یہ بھی مبنی ہے, یہ بھی مبنی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کام آپ کریں گے تو پھر آپ کو یہ گرامر آئے گی. اگر آپ یہ سمجھیں بیٹھے کہ رام سکون سے آ گئے اور رام سکون سے چلے گئے, یہ سونے کا کام شروع کر دیا اس نے, ماشاء اللہ ولدی. کتنی روٹیاں کھائی تھی ناشتے میں؟ ٹائم ہو گیا, چلو کوئی مسئلہ نہیں. ادھر دیکھیں گے تو ابھی میں بند کرتا ہوں. یہ مبنی یہ بھی مبنی ہے, کلیئر ہے یہ. اب ہم آ جاتے ہیں ادھر. اس میں مورب کی قسمت ہو نہیں سکتی کیونکہ یہ دونوں ہی مبنی ہیں, لہذا مرکب مفید غیر مفید میں مرکب غیر مفید ہے یا مفید ہے؟ مفید ہے. اور مرکب مفید میں خبریہ انشائیہ ہے. خبریہ کس نے کہا ہے؟ انشائیہ ہے. اور انشائیہ میں کون سی قسم ہے؟ امر. امر پہلی قسم ہے. ادخلوا داخل ہو جاؤ لیں گے. تو اس کی ترکیب ہم کیسے کریں گے؟ آپ کو میں نے کروائی تھی. ادخلوا فعل, اس میں واو اس کا فاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعل یا لوٹ. اتنی سی بات ہے. ہاں یہ چھوٹے چھوٹے کام کرو اور آپ چھوٹے کاموں کی وجہ سے بہت بڑے بن جائیں گے. اگر آپ چھوٹے چھوٹے کام کریں تو, اور بندہ بڑا تب بنتا ہے چھوٹے چھوٹے کاموں سے بندہ بڑا بنتا ہے. ایسے نہیں ہوتا اچانک انڈے سے چوزا نکلا, انڈے سے بچہ نکلا چڑیا کا, پھر اڑ گیا اور یا جو کیٹو پہاڑ کے اوپر جا کے بیٹھ گیا. ٹھیک ہے, پہلے وہ آرام آرام سے پانی نکلتے ہیں, پھر وہ پھٹ پڑاتا ہے, پھر وہ چھلانگ لگا کے باہر گرتا ہے, پھر وہ دیوار پہ بیٹھتا ہے, پھر وہ ٹری پہ بیٹھتا ہے, پھر آگے جناب بڑے ٹری پہ بیٹھتا ہے, پھر مینار کے اوپر بیٹھتا ہے, پھر پہاڑ کے اوپر جا کے پھر وہ بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہو سکتا ہے اگر آپ محنت کرو اور مستقبل میں آپ عالمات, فاضلات, علامہ, فہامہ کچھ بھی بن جاؤ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ محنت نہ کریں اور پھر وہی سوم و حکم عمیوں. آگے میں نہیں بولتا ہوں.